Actually, these questions can be done by using any other property also. The properties that we have done. But I mean, the partial fractions can also be used. So this is also one of the method. Fine. Okay. So the answer is this. ठीक है, error function की definition भी लिख लो because this is also important. This is the definition of error function. So where, I mean, by solving the question, if you land up here, the thing is, if you don't know that it is called as error function, you will just write this as the answer. But ठीक है, अभी फोर्थ सेमेस्टर में हो गया, कुछ कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पता भी होनी चाहिए. Should we move to the applications part? All of you have written? Yes, sir. Okay. So let me start with the applications of Laplace transform. So applications कहाँ पे आपके कोर्स में क्या क्या है to the second order differential equations, and इसमें भी चलो देखते हैं. Then coupled differential equation, solution of heat equation, heat flow using semi-infinite path. ठीक है, तो let us take the first application, that is the ordinary differential equation with constant coefficient. Constant coefficient भी हो सकता है, जैसे ये coefficients are constants. ठीक है, अब इसका coefficient is 1, इसका coefficient is y dash का coefficient is -2, इसी तरह से ऐसे वेरिएबल coefficients भी हो सकते हैं, which would be our second application, right? So ordinary differential equations with constant coefficient can be very easily solved and without even finding the general solution. आपको वैसे आपने जनरल सोल्यूशन वगैरह फाइंड करके ये वाली इक्वेशंस ऑलरेडी सॉल्व आपको आता होगा करना, बट यू हैव टू नाउ यूज LT टू सॉल्व दिस इक्वेशन. फाइन. लैपलास ट्रांसफॉर्म का एक वो है एप्लीकेशन है, तो यू शुड यूज लैपलास ट्रांसफॉर्म, नॉट द अदर वे. जनरल सोल्यूशन जैसे आप फाइंड करते हो, फिर आर्बिट्री कांस्टेंट्स और ये सब वाला जो आप यूजुअली डिफरेंशियल इक्वेशंस पहले किया होगा ना आपने. डिफरेंशियल इक्वेशंस, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, Yes, ma'am. तो वो वाला मेथड is not expected now. Fine. So what you have to do is you have to start with the equation, given equation. ठीक है, given equation ये है y double dash minus 2y dash plus 2y equal to 0. What is the solution? You have to solve means you have to find that value of y for which the left hand side becomes equal to the right hand side. This is what solution of a given equation means. ठीक है. So let me take this as equation number 1, जो given equation है इसका हमें. तो why I am naming this, because अब इसी equation पे आगे हमें काम करना है. जैसे first what we have to do is we have to take the Laplace transform on both the sides of this equation. Fine. When we take Laplace transform means इसका Laplace transform -2 तो बाहर आ जाएगा, L इस पे आ जाएगा, +2 बाहर आ जाएगा, L इस पे आ जाएगा, एंड ऑब्वियसली L0 पे आ जाएगा. ठीक है, कोई प्रॉब्लम अभी तक? स्टैंडर्ड इसके कोई भी इक्वेशन आप सॉल्व करते हो, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है. फर्स्ट वी हैव टू टेक लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन, फाइंड आउट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y. ठीक है, अब लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे y चाहिए. मुझे यहाँ से क्या मिला है, L ऑफ y मिला. मुझे क्योंकि y चाहिए तो ऑब्वियसली उसके बाद मुझे जो भी L ऑफ y आया है लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के बाद उसका इनवर्स LT निकालूंगी. तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है. तो लेट अस फर्स्ट टेक द LT ऑन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन ऑन बोथ द साइड्स. तो LT ऑफ दिस वुड बी व्हाट, क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम इसमें? F dash t वाली हम यूज कर रहे हैं. हाँ, डबल डैश वाली भी होती है ना Yes, सेकेंड ma'am. ऑर्डर डेरिवेटिव. तो वो क्या होगा, एस स्क्वायर L ऑफ y माइनस S y0 माइनस y डैश 0.
ठीक है, तो इसको हमने जैसे मैंने लिखा है एग्जैक्टली ये प्रॉपर्टी रीजंस के साथ, आपको जहां पे भी कुछ भी चीज चेंज कर रहे हो you have to write give the reasons. Fine. Okay, so this is my first term. second term क्या है, L of y dash, वो क्या होता है एस एफ एस माइनस एफ जीरो, तो एस एल वाई माइनस वाई जीरो, और थर्ड टर्म एज इट इज लिखा है। कोई प्रॉब्लम इसमें बताओ अगर है तो किसी को। तभी मैंने आपको बोला था जब मैंने डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी की थी कि एप्लीकेशंस में दिस प्रॉपर्टी इज वेरी 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 यूजफुल। फाइन नाउ, है ना, ठीक है। अब आपके पास y जीरो गिवन है, एट t इक्वल टू जीरो y गिवन है ना, वो उसकी वैल्यू है 1, एंड एट t इक्वल टू जीरो y डैश गिवन है, मतलब y डैश जीरो गिवन है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, ये देखो रीजन लिखा है मैंने, इनकी वैल्यूज पुट कर दी। इसको भी, इसको क्या पुट किया, y जीरो इज 1, y डैश जीरो इज 1, देन y जीरो इज 1, ठीक है। ये यहाँ से गिवन है ये सब कुछ, यहाँ से पुट किया एंड सॉल्व, ठीक है। तो सारी की सारी एल वाई वाली टर्म्स को मैंने इकट्ठा कर दिया। कौन सी एल वाई वाली टर्म्स है, एक ये है माइनस टू एस, और ये है प्लस टू, तो दिस इज एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस टू आ गया एल वाई के साथ में। यस, ठीक है, यस मैम। ओके। एंड y जीरो इज 1, तो यहाँ पे मेरे पास बाकी कांस्टेंट टर्म्स आएंगी, माइनस एस, देन माइनस 1, देन व्हाट एल्स, दिस प्लस टू, यस, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है एल वाई, जस्ट मेक श्योर दैट यू गेटिंग दिस एल वाई एज और नॉट। ठीक है, तो अभी इस तरह, क्योंकि मुझे नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, हैव टू फाइंड आउट, बिकॉज आई वांट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन मींस आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच the left hand side becomes equal to the right hand side. Fine, that means I have to find out y. तो ly मेरे पास आ चुका है, y कैसे आएगा, I have to take the inverse Laplace transform of this equation number 2 that I have marked here on both the sides. Clear है? क्लियर मैम। ठीक है, तो अब इसका, अब मैंने इसको क्या किया, ये मेरे पास आ गया था, मुझे पता है कि नेक्स्ट स्टेप में मुझे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, तो मैंने क्या किया, तो मैं इसको और ज़्यादा सॉल्व कर दिया। आई हैव रिटन दिस, जो डिनोमिनेटर है उसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे नेक्स्ट स्टेप में इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो उसके बाद व्हाट आई हैव डन, बता सकता है कोई मुझे, विच प्रॉपर्टी आई हैव यूज्ड, which property I have used? Yes. So this is what ET L inverse of S upon S square plus 1. S upon S square plus 1 का L inverse क्या होता है? It is cos t. एक यहाँ पे चीज़ और होनी चाहिए थी, जब आप यहाँ सेकेंड लास्ट स्टेप से लास्ट स्टेप में आ रहे हो तो यहाँ पे रीजन होना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं लिखा। I forgot to write the reason, मतलब property. Property should be written here clearly because you are using the property. Yes ma'am. Is it clear? This is actually very simple if you have, I mean, if you are thorough with, if you know each and everything of LT as well as inverse LT। अभी तक जो भी हमने किया है उसका एप्लीकेशन पार्ट है। फाइन, सो लेट मी टेक कुछ और क्वेश्चंस भी लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड, अगर नहीं भी लिखा है देन ऑल्सो कोई भी इक्वेशन है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से ही सॉल्व करना है, बिकॉज वही आपके सिलेबस में। ठीक है, सॉल्व दिस इक्वेशन एंड गिवन दैट ये y डैश 0 गिवन है, y डैश 0 इक्वल टू 1 गिवन है, देन y पाई ब्रैकेट में पाई, क्योंकि व्हेन t इक्वल टू पाई पे गिवन है y 0,
ठीक है, तो वही चीज किया हमने। फर्स्ट ये इक्वेशन को 1 मार्क कर लिया, अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया इस इक्वेशन को ऑन बोथ द साइड्स, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका आ जाएगा प्लस LT ऑफ दिस प्लस LT ऑफ इक्वल टू LT ऑफ दिस। सो आई हैव रीच्ड अप टिल हियर। ठीक है, मैम ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है क्या? साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको बताऊं मुझे क्या होती है? जिसमें मैंने x और y के फंक्शन में होती है। हाँ, तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन दिख रही है आपको? मैम इसमें t भी है ना साथ में? तो t कांस्टेंट है क्या यहाँ पे कोई वेरिएबल? साइमल्टेनियस इक्वेशन आएगी जब तब करेंगे, अब आगे मत भागो पीयूष। हाँ नहीं मैम मैं बोल रहा हूँ इसमें t दिखाई दिया इसलिए मैं। हाँ, तो टी तो दिखाई देगा ना किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस आएंगी अभी, वो भी सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग LT। ओके, सो दिस इज व्हाट s square ly minus sy0 minus y dash 0। ly को एज इट इज लिखो, l ऑफ t इज व्हाट 1 अपॉन s स्क्वायर। ठीक है, तो बस क्या किया मैंने, y0 और y dash 0 गिवन है कि नहीं है? भाई डबल डैश जीरो के बने ना, यस। y डबल डैश 0 कहाँ गिवन है? स्क्वायर वाई वाई डैश नहीं गिवन है। हाँ, तो इससे हम y डैश और y निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेट। हाँ ठीक है ना, ठीक है, तो y डबल डैश 0, y डबल डैश ब्रैकेट में 0 कह रही हूँ, एट t इक्वल टू 0 गिवन है, इट इज 1। सो व्हाट वुड बी y डैश 0? टी y 0 जीरो, और हाँ टी इज इक्वल टू जीरो, हाँ हाँ वो जीरो जाएगा। ये हम टी आएगा ना इंटीग्रेशन करने का, तो टी को हमने जीरो डाला तो इसमें जीरो हो गया ना। क्या होगा? ये वो तो इंटीग्रेट करके टी आना था ना, वो टी को मैंने जीरो नहीं डाला था। ये हाँ, बोल। ठीक है, और y0 क्या आएगा? जीरो, एक सेकेंड, वाई जीरो और वाई डैश जीरो जीरो है। यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिया। डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू है ना, इसको हम इंटीग्रेट करके डी बाई डी टी नहीं निकाल सकते हैं शायद, वो तो केवल एक पॉइंट पे वैल्यू दी है। हाँ मतलब निकाल देंगे लाइक अगर इसको। वो वन है तो इसमें तो फिर टी स्क्वायर भी होगा, हाँ, तो वही भी मैं वन सोच पे रही वन हूँ, ही आएगा। वही मैं सोच रही हूँ, क्योंकि साथ में तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी तो आएगा हर केस में। ठीक है, अभी इसको, क्योंकि ये जो है ना a और यहाँ पे 1, ये मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि गिवन क्यों ऐसे लिखा। हाँ, गिवन में गिवन, गिवन ये लिखा तो बेटा ये सब मैंने टाइप किया है, ये किसी बुक का नहीं है एक्चुअली, मेरे ही नोट्स का वो है। तो एक बारी मैं देख लेती हूँ कि ये क्वेश्चन को एक बारी मैं चेक कर लूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बारी मैं चेक कर लूँगी कि गिवन ये ही था या, क्योंकि यहाँ गिवन लिखा है ना, दैट मीन्स या तो ये गिवन होगा। बट वाई जीरो कैसे निकाला था? हाँ, तो y0 तो फिर वो आएगा ना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो वो कांस्टेंट को हमने a ले लिया। देखते हैं कि यार एक बार इसको मैं रीचेक करती हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, कोई नहीं, हमारे पास और भी क्वेश्चन है। चलो चलो अभी एक काम करते हैं, ये गिवन ना मान के, चलो ये मान के चलते हैं कि ये गिवन है आपको। ठीक है, बिकॉज ओके। मेरे को एक्चुअली एक और चीज गिवन है यहाँ पे, y इज 0 व्हेन t इक्वल टू पाई। अब इसका यूज कैसे क्वेश्चन में करेंगे वो मुझे यहाँ पे आपका मतलब मुझे शो करना है, इसीलिए क्वेश्चन ये वाला लिया गया है। प्लीज व्हाट whosoever is unmuted please mute yourself, there's a lot of disturbance coming. Okay, so let us say that this is given to you, a is a constant, y dash 0 is 1,
फाइन, क्योंकि यहाँ गिवन लिखा है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कुछ टाइप करते हुए, नोट करते हुए मैंने कुछ गड़बड़ करी है, ठीक है, इसको मैं चेक कर लूँगी, फाइन. So time being, let us say that this is given to you in the question itself, fine. And one more thing is given, what is that? That y is equal to 0 when t equal to pi. अभी उसका तो हमने यूज़ किया नहीं ना अभी तक. So let us see उसका एक्चुअली यूज़ कहाँ करेंगे, कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए करेंगे, ठीक है. चलो देखते हैं. ये चीज़, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, मतलब t इक्वल टू 0 पे जो कांस्टेंट की वैल्यूज गिवन है, मतलब ये y0 और y डैश, इनको सब्सटीट्यूट कर दिया है इन दिस इक्वेशन. सो y0 की जगह मैंने a लिख दिया है, देन y डैश 0 की जगह मैंने 1 लिख दिया, और तो कुछ भी नहीं किया, यस है ना. और जैसे मैं करती हूँ, ly को एक तरफ लेके बाकी सबको दूसरी तरफ फेंक दिया. एनी प्रॉब्लम? नो मैम. So this is my equation number 4. What is the next step? Actually you have to find y from Ly. So obviously you'll have to take the inverse Laplace transform of this equation. तो equation number मैंने mark कर दिया ताकि मैं इस equation को refer कर सकती हूँ. तो this is, I'm taking the inverse Laplace transform on both sides. So a is a constant, can be taken out. तो L inverse of s upon s square plus 1 आ गया, L inverse of 1 upon s square plus 1 आ गया, L inverse of this आ गया. कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को यहाँ तक? तो ये जो है फर्स्ट टू, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो एलिमेंट्री फंक्शन है. दिस इज व्हाट L इनवर्स ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 इज cos t. सिमिलरली L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 इज sin t. बट ये वो जो थर्ड वाला है, इसको या तो आप कन्वोल्यूशन से कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन वाले से भी कर ठीक है, कन्वोल्यूशन से कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो. So since it is not given to you, just आपको L inverse निकालना, it is not asked that you have to find this L inverse of this particular, quantity using convolution या किसी method से. तो मैंने क्या किया, use partial fraction. So I found this to be much more simpler in this case, तो मैंने ये कर दिया. तो ऐसे आ गया partial fraction. अच्छा, साथ में ना partial fraction यहाँ साइड पे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके रफ ऊपर लिख के दिखाओगे कि ये पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे आ रहा है, ठीक है. यस. तो ये तो सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन है. तो ये 1 बाय एस स्क्वायर का क्या होता है, t होता है, और 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का है माइनस साइन, तो ऑलरेडी ये साइन t होता है. तो जब मैंने इसको यहाँ पे फाइनल मेरी ये वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया, तो व्हाट आई एम गेटिंग इज इक्वेशन नंबर 7. कोई प्रॉब्लम किसी को? नो मैम. सो अगर मेरे पास ये गिवन ना होता, तो आई वुड हैव लेफ्ट माय आंसर टू बी दिस. बट सिंस आई कैन फाइंड नाउ द वैल्यू ऑफ a, हाउ इट कैन बी फाउंड, y इज इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू पाई. फाइन. तो जहां जहां पे t है उसको जब मैं पाई सब्सटीट्यूट करूंगी, देन आई कैन सब्सटीट्यूट द लेफ्ट हैंड साइड विच इज y एज 0. तो y को 0 पुट किया, t को पाई पुट किया यहाँ पे, और cos t में भी cos पाई पुट किया. तो a मेरा यहाँ से आ गया पाई. अब मैं a को यहाँ पुट करती हूँ, तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. एनी प्रॉब्लम, एनीबॉडी? सो दीज आर द टाइप ऑफ, हाँ बोलो. ये नहीं मैम, कोई शरद? डाउट नहीं. ओके. सो एक्चुअली बहुत सिंपल होते हैं एप्लीकेशंस, बट देखते हैं अभी कुछ जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन है, जब तक कि पता नहीं होगा तब तक आप कर नहीं पाओगे ना. सो दिस, लेट मी टेक दिस ऑल्सो. ये करोगे अभी अपने आप से? यस मैम. ये Yes, जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, मैं इसको छुपा लेती हूँ, ठीक है. तो y ट्रिपल डैश माइनस 3y डबल डैश प्लस 3y डैश माइनस y इक्वल टू t स्क्वायर e रेज़ टू पावर t. These are given to you. y0 is 1, y dash 0 is 0, y double dash 0 is minus 2. Quickly find out the solution.
of this differential equation. You can check from the answer from here. ठीक है, यहाँ पे सबको दिख रहा होगा टी स्क्वायर ई टी कैसे सॉल्व करोगे. दिस इज मल्टीप्लीकेशन बाय द पावर्स ऑफ टी स्क्वायर है, तो बाकी तो कर ही लोगे. दिस इज -1 की पावर, ये वाला यूज किया है, -1 की पावर 2 डी स्क्वायर एफ एस बाई डी एस स्क्वायर, यही यूज किया था. याद आ गया था सबको? ठीक है. So those who have done Ly, please check. This is Ly, and then I have taken the inverse Laplace transform. Everybody is getting this as Ly, or they are still doing? Yes, ma'am. Same. Okay, ठीक है. Good. Okay. One more application of the Laplace transform is we can solve the ordinary differential equation with variable coefficient. अभी तो constant coefficient के साथ किया था. The second application is we can solve the ordinary differential equation with variable coefficient. ठीक है, जैसे यहाँ पे t is variable coefficient हो गया ना, उसका जो y dash का coefficient is what 2t. तो अगर 2 होता सिर्फ तो constant coefficient है यहाँ पे, तो करना exactly same तरह से. The only thing here would be what? यहाँ पे first of all you'll take the Laplace transform. ठीक है, जब इसका Laplace transform, यहाँ पे Laplace transform t y dash का लेना पड़ेगा. तो आपको जब L of t y dash लोगे तो क्या होगा? d by ds of this. ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन बाय द पावर, फर्स्ट पावर हो गई ना t रेज़ टू 1 की पावर t से मल्टीप्लाई किया, तो नेगेटिव आ गया एक साइन, और साथ में d बाई डी एस आ गया, और किसका निकालना है ये? y डैश. तो s ly माइनस y0. दिस इज द ओनली डिफरेंस. जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट और वेरिएबल कोएफिशिएंट में और कुछ भी फर्क नहीं है, सेम वही स्टेप्स हैं. तो आप क्वेश्चन नोट कर लो और ये वाला स्टेप नोट कर लो, उसके बाद तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली यू कैन सॉल्व. तो आज हम 2 ही एप्लीकेशंस करेंगे, उसके बाद बाकी देखते हैं कॉलेज में उस दिन ट्यूसडे को करेंगे. ठीक है, इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क. सेम वही चीज़ कर रहे हैं, बस द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे टी वाई डैश वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं बस पहले, एंड देन यू विल फाइंड आउट. जो ये वाला है ना, इसमें आपने क्या किया? y0 की वैल्यू पुट कर दी अंदर यहाँ पे,
ठीक है। तो डी बाई डी एस ऑफ ये निकल के आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, -2 तो रहेगा ही। डी बाई डी एस ऑफ दिस वुड बी व्हाट, सिंपली एल वाई। ठीक है, ये जो भी अंदर चल रहा है ना, इसको पहले पूरा सॉल्व कर दो। वॉट एवर यू गेट हियर, टेक डी बाई डी एस ऑफ दैट, इट वुड बी सिंपली एल वाई, एंड देन you can take ly common, find out ly, take inverse Laplace transform on both the sides in order to find y. ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया ये वाला आप लोगों ने? मैम आपने यहाँ पर डी बाई डी एस ऑफ एस एल वाई को सीधा एल वाई ले लिया। हाँ तो मैम बट एल वाई तो इसका फंक्शन है। हाँ, लेकिन अभी जो है ना, हम जो है एल वाई को एल वाई ले रहे हैं, एल वाई को डेफिनेशन नहीं मान रहे हैं, ओके बिकॉज वी हैव एल वाई, यहाँ पे भी तो एल वाई है, यहाँ भी एल वाई है ना, इसलिए। ठीक है, तो मेन पर्पस इस क्वेश्चन को मेरा कराने का यही था। You can just note down the final ly that you will get and the final answer. मेरा आंसर शो करना ly। ये है ना इक्वेशन नंबर 2, दिस इज ly। Is it fine? यस मैम। फाइनल आंसर भी नोट कर दो, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना। थोड़ा करोगे बेटा, अब तो करने का टाइम आ गया ना, आप ही लोगों ने करना है अब तो। So let's take the second problem. A particle moves in a line so that its displacement x from of x point O at any time t is given by this equation, differential equation. Using Laplace transform, find its displacement at any time t if initially particle is at rest. Initially particle is at rest का क्या मतलब हुआ? x dash 0 is 0, x 0 is 0, ये ठीक है। तो ये इक्वेशन है, और लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन से हमें ये गिवन। फाइन, टेक द Laplace transform on both sides. अब L of dx by, ये तो वैसे कांस्टेंट का ही एक तरह से माना जाएगा ना, इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं कोएफिशिएंट, बट ठीक है, फिर भी हमारे पास ये क्वेश्चन वैसे अच्छा है, बिकॉज इसमें आपको लैंग्वेज से अपने आप से इसकी वैल्यूज बतानी है। जस्ट राइट डाउन दिस क्वेश्चन and the final answer. Alex नोट कर लो। क्वेश्चन बस इस एप्लीकेशन के बाद आज की क्लास फिनिश हो जाएगी, बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर, आई एम लीविंग यू अर्ली। Have you noted this question, all of you? यस क्वेश्चन। Okay. So Lx जो फाइनली आएगा, Laplace transform of x, note down this also. जब आप करोगे ना तो वेरीफाई के लिए would be useful. ओके मैम। And then I have used here partial fractions. ठीक है, आप वैसे भी कुछ भी यूज कर सकते हो, बट आई हैव यूज्ड partial fractions.
फाइनली दिस शुड बी द आंसर। पीयूष नेक्स्ट जो है ना क्लास में जब करेंगे तो साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस करेंगे। इस तरह की होती हैं और साइमल्टेनियस इक्वेशंस। एक ही इक्वेशन में एक्स वाई दोनों होते हैं।